अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th के गेस्ट पेपर्स की बात करने लगा हूँ। तवज्जो से सुनिए, बुक उठा लें, साथ में निशान लगाते जाएँ और सारे क्वेश्चंस लिखे भी हुए हैं। अगर कहीं आपको समझ में ना आए तो वीडियो पॉज़ करके आप इनको पढ़ भी सकते हैं, इन क्वेश्चंस को। सारी तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। आपको पता होना चाहिए आपका पेपर इन 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें ये कि 25% आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे और 75% आपका नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो आएँगे और 25% जो आपका पेपर होगा वो एनालिटिकल और फिर एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आपका होगा या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाएँगे। अब सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि हर चैप्टर में से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन-कौन से हैं, एक नज़र देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चंस, व्हाई डिड नॉन मुस्लिम्स ट्रस्ट द रसूल पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद दूसरा, हाउ डिड द रसूल पीस बी अपॉन हिम रिज़ॉल्व द इश्यू। तीसरा, how did the Rasul peace be upon set high and noble ideals for all mankinds. चौथा, how can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. पांचवा, what made the non-Muslims bring their swords to Rasul peace be upon him. छठा, how does the Holy Quran describe the personality of the Rasul peace be upon him. ये चैप्टर 1 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चैप्टर 2 में जो क्वेश्चंस हैं, अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके इनको आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला, व्हाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। दूसरा, व्हाट डिड द लिटिल रेड envelope filled with the money symbolize. तीसरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। चौथा, when does the Chinese New Year start? Why does a Chinese dinner consist of 8 or 9 dishes? 6. What do decorations on doors and windows symbolize? Chapter 3 में कौन से हैं? How many times should we try and why? अगला, what should we do if we find our task hard? Next, what can we learn from failure? How is the failure not a disgrace? Chapter 4. Why is it necessary to keep away soap from the wound? What should your first aid kit consist of? Why should you not keep checking if the bleeding has stopped? Fifth, how is an antibiotic cream or ointment good for healing the wound? When do you need to see a doctor? Chapter 5 के important questions. What do the rich and poor leaves stand for? What, according to the poet, is a sweet noise? What will happen after the rain stops? Chapter 6 के important questions. पहला, what is one good thing about the newspaper? Next, why do some people read more than one newspaper? How does a viewer get restricted while watching TV news? Which medium do you prefer for news and why? How is newspaper a more convenient medium for news? How does television make us lazy? Chapter 7 की बात करते हैं. How has the writer spent his summer vacation? What has he gained from the summer job experience? What are the some distinctions of the writer? Chapter 8 में, how does the scene look like when the wind is still? What's mean by profession? Right profession. 3. What is wind doing to all man's work? Chapter 9 के important questions. Why is it important to consider the scope of any field? Next, which career do you want to opt for or and give reasons? How can career counselors help young people? What were some famous careers for young people in the past? Chapter 10. Why are books better than radio, TV, and internet? Can modern technology take the place of books? Sorry. What changed Pip's life? How does a book connect the reader and writer? Which book has inspired you the most? Why? Chapter 11. Why did the prisoners support Pip? Who looked after Pip after the death of his parents? What happened to the prisoner? What kind of boy was Pip? Who was Joe? How did he treat Pip? Chapter 12.
What is the major cause of food shortage and malnutrition? How is fossil energy a finite source? What is the major cause of food shortage and malnutrition? How are resources under great stress? What is the limitation of improved technology? Chapter 13. Why did the why did the accusers forgive the villager? What case did the young man bring to the Hazrat Umar Farooq? Raziyallahu anhu? Why were Sahaba worried? Why did the old man hurl a stone at the camel? On what condition was the criminal allowed to leave? ये थे शॉर्ट क्वेश्चंस हर चैप्टर में से। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं इंग्लिश टू उर्दू चैप्टर 1 में कौन कौन से हैं। पहला, हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट मोड जो कि फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ये वाला पैराग्राफ है। दूसरा, हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव्ड, दूसरा ये पैराग्राफ है। तीसरा, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, ये तीसरा। चौथा जो है ड्यूरिंग दिस सरमन एंड अंसारी सीइंग सम। अब ये जो पैराग्राफ की जो शुरुआत है वो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब पांचवा जो पैराग्राफ है, वाइल हज़रत मोहम्मद वाज ऑन हिज डैश वर पेड टू हिम। ओके, ये चैप्टर 1 की जो इंग्लिश टू उर्दू पैराग्राफ है। अब चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं। पहला पैराग्राफ, न्यू ईयर्स ईव डिनर। ओके, ये पहला पैराग्राफ होगा। दूसरा, ऑनरिंग द एनिमल, एवरी ईयर इज एसोसिएट दैट एनिमल। तीसरा पैराग्राफ, चाइनीज न्यू ईयर इज अ हॉलीडे। चौथा, एन अदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग। उसके बाद तीसरा चैप्टर नहीं है, चौथे चैप्टर में देखिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अप्लाई एन एंटीबायोटिक आफ्टर यू क्लीन द वाउंड। दूसरा, क्लीन द वाउंड, रिंस आउट द विंड, सॉरी वाउंड। तीसरा जो है, वी ऑल नीड हेल्प एट द टाइम इन आवर लाइव्स। चौथा, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम। अब छठे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, पहला, न्यूज़ कवरेज ओवर द टेलीविजन इज डिफरेंट। दूसरा, टेलीविजन ब्रिंग लेजीनेस। तीसरा, न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट। चौथा, ईच मीडियम हैज स्ट्रेंथ दैट। अब चैप्टर 7 की हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, पहला, आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट। दूसरा, इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। तीसरा, एज ए स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। चौथा, द लास्ट कपल ऑफ द ईयर्स हैव बीन। उसके बाद चैप्टर 9 में जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इंग्लिश टू उर्दू, कैरियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड। Once a field has been selected, the next step is, today life has become more dynamic. Chauथा, the scope of any field in the terms of markets. Chapter 10, through reading a book connects us with. दूसरा, it's important we work to give. Literature is the story of human. Books are the source of comfort for us. Chapter 11, Pip and his friend decided that London was. The story began with Pip. In London, Pip studied hard. Chapter 12 के important paragraphs. Fossil energy is another prime resource used. दूसरा, certainly improved technology will assist. तीसरा, water is another critical item for all. Chapter 13 में देखिए, the third day dawned, the accuser's end. दूसरा, when the whole court was in. ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड ऑफ द पैराग्राफ। वंस हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु सिटिंग, ये पैराग्राफ, और ये एंडिंग यहाँ पे है, सॉरी ये वाला। उसके बाद द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एसेज हैं उनकी बात कर लेते हैं। अ ट्रू मुस्लिम, माई लास्ट डे एट स्कूल, माई हाउस, कर्टेसी, अ क्रिकेट मैच, कायद आजम, इन हॉकी मैच भी देख लीजिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, टेलीविजन, विलेज लाइफ, माई हॉबी, ये इंपॉर्टेंट एसेज हैं। अब इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। माई नेबर, माई स्कूल, फैशंस, पाकिस्तानी women, a road accident, a dream, a river in flood,
Girls Guides, House on Fire, The Teacher I Like the Best, A Picnic Party. अब ये इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं ग्रामर के, ये बहुत सारे हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, आप वीडियो पास करके इनको एक बार पढ़ लें। अभी 1 से 18 तक, सॉरी सॉरी सॉरी, वीडियो पास कर लें और इनको आप पढ़ लें। उसके बाद ये 17 से 33 तक वीडियो पास करके आप इन्हें पढ़ लें। उसके बाद ये 34 से 47 तक वीडियो पास करके पढ़ लें। उसके बाद ये 48 से 65 तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं, आप इनको रीड कर लें वीडियो पास करके। एंड फिर उसके बाद हैं ये 66 से 84 तक, और फिर ये 2 भी आप देख लें। अब बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, उर्दू टू इंग्लिश। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जी हाँ, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। ये वाला, वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। उसके बाद शहर आने से पहले हम गाँव में रहते थे। नेक्स्ट, एक दफ़ा 2 दोस्त सफ़र पर रवाना हुए। ये मेरा मकान है, मेरे घर के सामने एक बाग है। उसके बाद जौहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक नौजवान बाग में बैठा था, ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर से ये अभी तक जा रहे हैं। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। मेरी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती है। डर है कि चंद साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। एक कंजूस था। उसके बाद ये तस्वीर हमारे गाँव की है। सो ये था गेस्ट पेपर। प्लीज़ इसे शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सब तक ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। कहीं भी अगर आपको समझ ना आया तो वीडियो पास करके आप उसे पढ़ सकते हैं। एक-एक चीज़ स्क्रीन पे दिखाई गई है। थैंक यू सो मच।